الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے میں نے اپنے نفس کا جائزہ لینے کے سلسلے میں بات کی تھی۔ سال کا ختم ہے، سال آئے گا، سال جائے گا، کیلنڈر بدلیں گے، اگر ہم نہیں بدلیں گے تو یاد رکھنا ایک دن ہمیں بدل دیا جائے گا۔ کس میں؟ آج جس امپورٹنٹ کپڑے میں ہم چل پھر رہے ہیں پہن کر، برانڈ کے نام پر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک دن آئے گا ہمیں بدل دیا جائے گا کفن کے ٹکڑے میں۔ آج ہم بڑی بڑی کار میں گھومنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور بڑے بڑے گھروں میں رہنے کو اگر اپنے لیے ہم شان سمجھتے ہیں، تو اس کو سن لینا، ایک دن وہ گھر بھی بدل دیا جائے گا اور سیدھے قبر کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آپ نے وہ نظم تو سنی ہوگی نا، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ سننے والے مزے لے کے سنتے ہیں، لیکن اس کے اندر کے اگر معنی کو سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، زندگی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، یہاں کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا میں ہم رینٹڈ ہے، کرائے پر ہے۔ زندگی ہماری آخرت کے بدلے میں کرائے پر لی گئی ہے، یعنی اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے ہی بھیجا ہے۔ گویا ہم دنیا میں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس گھر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ دنیا ایک کرائے کا گھر ہے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ بڑے سے بڑا ترم خواہ، بڑے سے بڑا مالدار بھی پیسے دیکھ کر موت کو کیا نہیں کر سکتا؟ خرید نہیں سکتا۔ فرعون کے پاس لاکھوں کی سمپتی تھی، قارون کے پاس لاکھوں کی آستی تھی، شداد کے پاس بھی لاکھوں کا مال تھا، کروڑوں کا مال تھا، لیکن کسی کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ موت کو خرید سکے۔ دنیا میں کوئی آدمی موت کو خرید نہیں سکتا، اور موت سے بچ بھی نہیں سکتا۔ اور موت کی ایک خاصیت ہے، اپنے ساتھ بہانہ لے کر آتی ہے، اور آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ موت کو برا بھلا کہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت اپنے ساتھ بہانہ لے کر آتی ہے۔ ابھی ایک ہفتے پہلے اخبار میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، یہاں سے تھوڑی دور نیل منگل ایک آدمی نے عمدہ کار خریدی۔ جو کار سیفٹی کے معاملے میں کیا سمجھی جاتی تھی؟ بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ سمجھی جاتی تھی، اولو کمپنی کی۔ اس نے کمپنی والے کو یہی بول کر خریدا تھا کہ میری فیملی کے سیفٹی کے لیے چاہیے، اگر ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو میری فیملی سیف رہے۔ اللہ کو یہ بتانا مقصد تھا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت پکڑ لے گی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم اگر کسی محفوظ قلعے میں بھی کیا رہو، ایک سیف ہاؤس میں رہو، ایک سیف کار میں رہو، وہاں پر بھی موت آئے گی۔ موت سیفٹی نہیں دیکھتی، موت بس اتنا دیکھتی ہے اس کا وقت ختم ہوا ہے۔ اگر تم سیف ہاؤس میں بھی رہو، سیف کار میں بھی رہو، موت آدھا پہنچے گی۔ ہوا کیا؟ پورا کا پورا کنٹینر ایک کار کے اوپر گر گیا، فیملی کے 6 افراد ایک ہی ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم موت سے بچنے کے لیے ہزاروں تدبیریں اختیار کرو،
मौत तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, यकीनन मौत जिससे तुम भागने की और बचने की कोशिश करते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुम्हें पकड़ लेगी, वो तुम्हें आग दबोचेगी। तुम्हारे पास टाइम भी नहीं होगा तौबे का, तुम मौज मस्ती कर रहे होगे। साल के इख्तिताम पर तुम्हें पार्टियां मनाते हुए अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तब तुम्हें जिंदगी का एहसास होगा कि दारू की पार्टी नहीं मनानी चाहिए थी, बेचारा अल्लाह को पीते पीते ही प्यारा हो गया। अजीज़ाने गिरामी, ये जिंदगी के इख्तिताम का मरहला है, ये जिंदगी के खत्म होने की दावत है। साल का गुजरना, साल का खत्म होना, ये जिंदगी के बढ़ने की दावत नहीं है, ये मौत की दावत है। ये मौत की तरफ इंसान को जो है बुलाया जाता है कि देख तेरी आखिरत के दिन करीब है, तू कहां भाग रहा है। तुम दुनिया में गुनाह करते थे तो क्या कहा अल्लाह ने, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। होगा क्या, तुम्हारे अच्छे बुरे सारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे, तुम्हें देने के लिए जवाब भी नहीं होगा कि क्या तौबा करके आए या तौबे के बगैर ही मर गए। अजीज साथियों, ये दुनिया बिल्कुल किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बड़े से बड़ा मालदार, गांव का चौधरी, इलाके का जिम्मेदार, मदरसे का जिम्मेदार, मस्जिद का जिम्मेदार, जो कोई भी हो, उसे एक दिन जनाजे में उतरना पड़ेगा और सीधे कब्र के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। ऐलान है अल्लाह का, लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तक़दिमून साअतन वला यस्तअखिरून। टाल मटोल नहीं हो सकती। हम डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, खुदा करके अल्लाह का वास्ता देते, जरा हमारे भाई को बचा लो, जरा मेरी बीवी को बचा लो, जरा मेरे बच्चे को बचा लो। हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते, मौत से कोई रिक्वेस्ट नहीं हो सकती। मौत से कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी, मौत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। मौत आएगी तो मामला आखिरी होगा और आखिरी बात होगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के घमंड को तोड़ने के लिए चंद ऐसी बातें कही है। लोग दुनिया में जीते जीते, दुनिया के पीछे भागते भागते घमंडी बन गए हैं, फख्र वाले बन गए हैं। उन्हें अपनी जिंदगी पर आस है, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी पर आस है, उन्हें अपने कमाई पर आस है, कारोबार पर आस है, दुकान पर आस है, धंधे और दौलत पर जो है फख्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा फख्र, सारा घमंड तोड़ दिया और बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि अखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमनकबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये कंधे पर हाथ रखने का मतलब क्या, मतलब बयान किया गया है, जब कोई आदमी कंधे पर हाथ रखकर बात करता है तो कोई अहम बात है। तवज्जो दिलाने के लिए सुनो, इधर सुनो। एक कंधे पर हाथ रख के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरी सबील, फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम चलते मुसाफिर हो। कैसे रहो, चलते मुसाफिर। मुसाफिर का क्या, जिधर ठिकाना मिला उधर सो गया और जिधर मौत आ गई वहां मर गया। तुम ऐसे रहो दुनिया में, तुम दुनिया के पीछे इतना न भागो कि तुम्हें अपने मरने का भी ख्याल न हो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घमंड तोड़ा। तुम्हें इस दुनिया पर आस है, तुम्हारा घर बन रहा होगा, तुम्हारा मकान बन रहा होगा, तुमने हजारों सपने सजाए होंगे। बेटी की शादी या बेटे की शादी के लिए हजारों सपने सजाकर सारी तैयारियां की होंगी। निकाह के दिन ही या तो दुल्हे का इंतकाल हो जाएगा या तो खुद बाप का इंतकाल हो जाएगा। सारा मामला मिलिया मेट हो जाता है और अल्लाह ये बताना चाहते हैं, मौत तुम्हारे लिए खुशी का मौका देखकर भी नहीं आती, मौत तुम्हारे लिए गम का मौका देखकर भी नहीं आती। होता ऐसा है, ईद की सुबह में सब उड़ जाते हैं,
घर में खुशी का माहौल है कि आज ईद का दिन है, सब नमाज पढ़ने जाएंगे, बच्चियां खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बीवी खुश है, माँ बाप खुश है। अचानक घर के जिम्मेदार का इंतकाल हो जाता है ईद के दिन की सुबह में। क्या कुछ नहीं, फजर पढ़ के आए थे, सोडा टेक लगा के सोए थे, एक गिलास पानी पिए, हल्की सी इचकी आई, हल्की सी डकार आई, पता नहीं क्या हुआ, वहीं पर जान चली गई। ईद के दिन ही अल्लाह खुशी के माहौल को किस में बदल देता है? गम में बदल देता है। तो मौत से भागते हो, तुम्हें दुनिया पर आस है, दुनिया इतनी है, दुनिया इतनी है, इतनी मुख्तसर है। तुम्हें अपने उम्दा कपड़ों पर फख्र है कि तुमने 5,000 की जीन्स पहनी है, तुमने 15,000 की वॉच पहनी है, तुम 15 लाख की कार में घूमते हो, यह फख्र है। ये सारे फख्र और घमंड को छोड़ दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे जियो जैसे मुसाफिर हो। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा क्या है दुनिया में मैं ऐसा हूं जैसे चलता मुसाफिर, थक गया तो एक दरख्त के नीचे सो गया और साया हासिल किया, फिर उठा तो वहां से क्या हुआ, आगे को अपना सफर तय किया, नहीं तो उसी दरख्त के साये में मेरा क्या हो गया, इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने अपनी मिसाल देकर समझाई। इस्लाम और शरीयत में हुक्म क्या है? पानी की मौजूदगी में हम तयम्मुम नहीं कर सकते, यानी मिट्टी से वजू नहीं कर सकते, ये इस्लाम और शरीयत का हुक्म है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाने के लिए कि कितनी मुख्तसर है जिंदगी, भरोसा नहीं है, वो समझाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक साहबी है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत से फारिग होकर बाहर आ गए, इस्तिंजे से बाहर आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम से वजू किया, यानी मिट्टी से वजू किया, और सामने पानी मौजूद था। मानकर चलो यहां वॉशरूम है, अल्लाह के नबी निकले, यहां पर वजू किया, पानी वहां पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी रसूल ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी के होते हुए आपने तयम्मुम कैसे किया? ये तो वजू जायज नहीं है। हम ये नहीं पूछना चाहते कि आपने एक नाजायज काम किया, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नबी के हर अमल में हिकमत होती है, नबी के हर अमल में दावत होती है, नबी के हर अमल में उम्मत को पैगाम होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फलाने, मुझे यकीन नहीं कि मैं पानी तक पहुंचूं, खुदा न खास्ता मैं अगर यहीं पर इंतकाल हो जाऊंगा तो मैं कैसी हालत में मरूंगा। अल्लाह अकबर। उम्मत को 2 पैगाम दिए, हमेशा पाक रहो, तहारत नहीं है करके कितनी नमाजें छोड़ दिए। पहला पैगाम दिया तहारत से रहो, पाकी से रहो। दूसरा पैगाम दिया इंसान को यहां से वहां तक पहुंचने की भी गारंटी नहीं है। उम्मत के लिए पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उम्मत के लिए बहुत दर्द भरा पैगाम। घमंड तोड़ दिया। अरे तुम्हें अपनी जिंदगी में सांस का भी भरोसा नहीं है कि तुम अगले मिनट की सांस ले सकोगे या नहीं ले सकोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लोगों को तमाम चीजें आगाह करके छोड़ दी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हमें क्या बोलते हैं? चलो जी साहब नमाज पढ़ेंगे का तो क्या बोलते, कल से आतू ले, अभी एक बार देखे थुआ ले। ये जुमले हैं हमारे नेकी के मामले में। रोजा रखो, नहीं आज क्या कि जरा आराम नहीं लग रहा, कल से रखो ले रोजा रमजान के महीने में। हमारा नेकियों के मामले में कल 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 होता है। चलो तो जरा एक कॉन्ट्रैक्ट आया है देखोगे, अभी चलो जी फौरन। दुनिया के मामले में हमारी हाँ फौरन होती है, आखिरत के मामले में, दीन के मामले में हमारा कल होता है हमेशा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत के लिए घमंड तोड़ बात कही। सारे घमंड छोड़ दो, सारा फखर छोड़ दो। तुम्हें जिंदगी पर कितनी आस है, तुम्हें जिंदगी पर कितना घमंड है, तुम्हें जिंदगी पर कितना फख्र है, सारा फख्र 2 मिनट में खत्म किया। फरमाया अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, इज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबाह, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। क्या मालूम ये आज ईशा के बाद तुम्हारा सोना आखिरी सोना हो, फजर में तुम कल का सूरज ही न देख सको। आज तुम बिस्तर में सोए हुए हो, क्या मालूम कल तुम्हें सुबह में कफन में लपेट कर शाम की नींद तुम्हारी कब्र के अंदर होगी। मत फख्र करो अपनी जिंदगी पर। तुम नेकी के मामले में कल कल बोलते हो। अरे हर रात सोने से पहले सलातु तौबा पढ़ के सोया करो और अल्लाह से माफी मांग के सोया करो। ए अल्लाह तू साल साल देता रहा और मैं साल साल गवाता रहा, मुझे फिक्र नहीं हुई अपनी आखिरत की।
जरा ये फिक्र आ गई, रात में सोने से पहले 2 रकात सलातुत तौबा आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपने तौबा की और एक नेक इरादा किया कि कल से मैं पूरी नमाजों का एहतिमाम करूंगा, कल से मैं अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों पर अमल करूंगा। उसी रात आप सो गए और पता नहीं सुबह में उठे ही नहीं, तो बताओ कैसी हालत में मौत हुई? मौत अच्छी हालत में हुई, मौत तौबे की हालत में हुई। यहां साल के खत्म होने पर हमने रात में पार्टियां मनाई या केक काट कर खुशियां बांटी और रात में सो गए, सुबह में उठे नहीं, तो बताओ हमारी मौत कैसी हालत में आई? अल्लाह के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला ने पैगाम दिया उम्मत के नाम, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर अस्सबाह, इज़ा अमसैता फला तंतज़िर अस्सबाह, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो। आगे फरमाया व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर अल-मसा, जब तुम सुबह करो तो शाम में क्या ना करो, शाम का इंतजार न करो। घर से निकलते हुए बोल कर जाते हो जाकर आता हूं, घर वाले इंतजार कर रहे होते हैं, माँ बाप बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। हमारे अब्बू ने कहा था कि वो चॉकलेट लेकर आएंगे, हमारे अब्बू ने कहा था कि मुझे नोटबुक लेकर आएंगे, बीवी इंतजार कर रही होती कि घर का राशन लेकर आएंगे, माँ इंतजार कर रही होती है कि मेरा बेटा भूखा आएगा, मैं पका कर रखी हूं, मेरा बेटा खाएगा। सुबह सुबह जाते हैं, पता चलता है, खबर आती है एक हादसे में इंतकाल हो गया। शाम को पलट कर बच्चा नहीं आता, मैयत आती है। फरमाया इसीलिए इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार न करो। और हम नेकी के मामले में कहते हैं आज से नहीं लो कल से करेंगे, कल से नहीं लो परसों से करेंगे। यहां एक दिन और सुबह शाम की भी गारंटी नहीं दी, इसलिए फरमाया सुबह करो तो शाम का इंतजार न करो, शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद उम्मत को पैगाम देने के लिए फरमाया इस्तहयू मिनल्लाहि हक्कल हया, अल्लाह से शर्म करो, अल्लाह से शर्म करो। साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह हम अल्लाह से शर्म करते हैं। फरमाया तुम्हारा अल्लाह से शर्म करना ऐसा नहीं है। अल्लाह से शर्म का क्या मतलब है? वलाकिन मन इस्तही मिनल्लाहि हक्कल हया फलयहफज़िर रअस वमा वआ, तुम्हारा दिमाग सही सोचे, तुम्हारा सर सही सोचे, तुम्हारा दिल सही सोचे। दिल में गुनाहों का अंबार है, तुम जाहिरन इबादत कर रहे हो, दिल में नफरत पाल रहे हो, तुम जाहिरन सजदा कर रहे हो, दिल में सामने वाले के सिलसिले में तुम्हारे दिल में खुन्नस है। नहीं, तुम अल्लाह से सच्ची हया करो, तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करो, तुम अल्लाह से सच्ची माने में क्या करो, शर्म करो। शर्म का नाम ये नहीं है कि छुपा जाए, शर्म का मतलब ये है कि अल्लाह जो नहीं चाहते हैं वो ना करो, अल्लाह जो चाहते हैं वो करो। हमारा दिमाग सही सोचे, हमारी आंख सही देखे, हमारे कान सही सुने, हमारी जबान सही बोले, क्योंकि ये नेमत अल्लाह ने दी है। अरे गुनाह करते हुए कान में जो है, कानों से गुनाह करते हुए स्पीकर्स लगाकर सॉन्ग सुनते हुए थोड़ी भी हया नहीं आती अल्लाह से कि ये नेमत अल्लाह ने दी थी। अल्लाह चाहे तो विद इन अ सेकंड इस नेमत को छीन सकता है। इस आंखों से बेहयाई करते हो, अल्लाह चाहे तो 2 मिनट क्या 1 सेकंड में आंखों की देखने की सलाहियत छीन सकता है। कुरान में सूरह अनआम में आयत नंबर 46 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे सुनने की ताकत छीन ले। ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे कान छीन ले, कान वहीं पर रहेंगे, कानों के अंदर की कुदरत छीन सकता है। आंख वही रहेगी, आंखों के अंदर के देखने की सलाहियत छीन सकता है। ये सारी नेमतें तुम्हें अल्लाह ने दी है, तुम्हें थोड़ी भी हया नहीं आती गुनाह करते हुए। तुम दुनिया में आए हो तो अल्लाह के चाहने से आए हो, तुम दुनिया से जाओगे तो अल्लाह ही के चाहने से जाओगे। बस फर्क इतना है, दुनिया में रहो तो अल्लाह जैसे चाहता है वैसे रहो, तुम जैसे चाहते हो ऐसे ना रहो। तुम जो चाहते हो, जैसे रहना चाहते हो उसे मनमानी कहते हैं। अल्लाह जैसे रहना, अल्लाह जैसे जीने का तरीका सिखाते हैं उसे कहते हैं शरीयत वाली जिंदगी, उसे कहते हैं कुरान वाली जिंदगी, उसे कहते हैं रसूलुल्लाह की अहकामात वाली जिंदगी। ये जिंदगी अल्लाह तुमसे चाहते हैं। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की तौफीक दे। अल्लाह के नबी ने आखिर में एक बेहतरीन बात बताई, फरमाया तुम अल्लाह से शर्म करो, किस मामले में? वल यज़किरिल मौत वल बिला, फरमाया मरने और मरने के बाद हड्डी बनने का तुम्हें डर हो, तुम्हें याद हो। तुम अपनी जिंदगी पर फख्र मत करो,
साल आएगा, साल जाएगा, कैलेंडर आएगा, कैलेंडर चला जाएगा, कैलेंडर बदलते रहेंगे, तुम कब बदलोगे मियां? अपने मरने को हमेशा याद रखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी पर फख्र है, अपने जिस्म पर फख्र है, अपनी बॉडी पर फख्र है, एक काम करना, देखो जी, तुम जब मरोगे ना, सबसे पहले तुम्हारा पेट सड़ेगा, इस पेट को पाक रखो। तुम्हारी आंखें सड़ेंगी, तुम्हारे हाथ सड़ेंगे, तुम्हारा दिमाग सड़ेगा, जिस्म सड़ेगा, जिस्म के अंदर की जो है गोश्त गल कर क्या हो जाएगा, मिट्टी के बराबर हो जाएगा, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन जाओगे। इसको न भूलो। अल्लाह के रसूल ने ये उम्मत को पैगाम दिया, साल आता है, साल जाता है, तुम आते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त इंतकाल कर जाते हैं, तुम्हारे से छोटा भाई इंतकाल कर जाता है, दादा जिंदा रहता है, पोता इंतकाल कर जाता है, दादा को पैगाम है, देख आज हमने तेरे आंखों के सामने तेरे पोते को छीन लिया, कल तेरी जिंदगी की बारी है। फिर से वही जुमला दोहराऊंगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम सेफ हाउस में रहो, तुम बंद कोठरी में रहो, तुम ये सोचो कि यहां तक कोई नहीं आ सकता, नहीं। जहां कोई नहीं आता ना, एक बात सुनकर बात खत्म करता हूं, जहां कोई नहीं आता वहां सिर्फ एक चीज आ सकती है, उसका नाम है मौत। उसके लिए सुराख की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी सिक्योरिटी गार्ड की भी जरूरत नहीं है। हम हजारों सिक्योरिटी गार्ड आपने आस पास लगाए, विथ हथियार हो, कोई भी मौत को टक्कर नहीं ले सकती। अगर अल्लाह का हुक्म आया तो जिसको तुम गार्ड बनाकर रखे हो, पल भर में वो चला जाएगा, उसके बाद आपके पास आएगी मौत, टाइम नहीं लेगी मौत। इसलिए आखिरी गुजारिश है, मरने से पहले सुधर जाओ, मरने के बाद सुधरने का इरादा ना करें। जैसे पिछले हफ्ते कहा था, आज अमल है, कल हिसाब है। आज हिसाब नहीं है, आज अमल है, कल हिसाब है। आज हिसाब नहीं है, कल को सिर्फ क्या देखा जाएगा, अमल देखा जाएगा। क्या लेकर गए, कितनी प्रॉपर्टी बनाकर आया, कितने दुकानात बनाकर आया, क्या करके आया, ये सब सिर्फ दुनिया के अंदर सेटअप होगा। मरेंगे, सारी जायदाद हमारे मरने के बाद हमारे खानदानों में बढ़ जाएगी। हमको तन्हा जाना है, अपने आमाल का हिसाब देना है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।